के हैं उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। दफ़ा 370 मामले पर अदालती उसों में समाअत जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियाद पर समाअत जारी हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल है। इससे कबल 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ सीनियर वकील और राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने बहस का आगाज किया। आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की जानिब से सीनियर वकील राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। I appear for the JK People's Conference, my lord, in writ petition 1165 of 2019. A question that your lordship put to Mr. Sibal was, have you challenged the presidential proclamation of 19th December? We've challenged the suspension, my lord, and that is very important to our argument on Article 3. There is also another petition, my lord, Sohail Qureshi 1068 of 2019, which actually challenges the proclamation. 2068, right? 1068. Would begin by saying, as well from my Lord the Chief Justice, that this oral submission is in the nature of a dialogue, and a very important dialogue, which even the US Supreme Court doesn't have. They assume everything is read and there's a bit of question and answer and that's it. And it is because of the nature of the dialogue, we have to, on an ongoing basis, answer what fell from your lordships as well. I'll give your lordships an example. My Lord the Chief Justice made a reference to 249 and 252. Of course, they are of a different genre. But nevertheless, my Lord, that question is very, very important for us to build the diversity argument and whether there is transformative constitutionalism, whether there is a basic structure, whether that's a lost cause or not. Then, my Lord, your lordships had asked questions about Article 31D and whether Article 370 subclause 3 survives. Now, this is important because it's been used only twice. It was used in GO 44, my Lord, and now it has been used once again in GO 273. Now, if it doesn't survive, my Lord, how can it be used in this particular way? We have to answer that question for your lordships. In addition to that, my Lord, there seems to have been some confusion or misunderstanding on the status of merger agreements, my Lord. The question that fell from your lordships was that once the instrument of accession is over, sovereignty is complete. Our respectful submission, my Lord, on this, which I will elaborate. I've done it in a note, my Lord. Like Mr. Zafar, I'll hand over that note, my Lord, to your lordships. My Lord, 37, as far as the instrument of accession is concerned, it deals with external sovereignty. Kindly bear this in mind, it's very important. External sovereignty is lost.
with a few exceptions here and there. But internal sovereignty is not lost. That is why in Premchand, they say the monarch was still an absolute monarch. Premnath Kaul, sorry. So what the purpose of the standstill agreement was, what system would you have in the meanwhile? The state of the Raja of J&K didn't sign a standstill. The records show there was some toing and froing and eventually, which means he retained all his power. So as far as internal sovereignty is concerned, the standstill was very important because all the powers of the Maharajas and the coming states, my lord, retained their internal sovereignty. Now come to the merger agreement. The merger agreement is important, my lord, because it finally indicates the extent of internal sovereignty. If there was no standstill agreement, and if there was no merger agreement, my lord, the Maharaja would be absolute, as Premnath Kaul says. So I take 370 to be, my lord, a substitute, a constitutional substitute for a standstill and merger agreement, without which, my lord, we are lost. And I'll explore that, my lord, later when I come to 370. Your lordship also, my lord, put a question to Mr. Zafar Shah that on the 4th of August, what were the autonomies that you were going to lose? He promised you a list, my lord. One answer to that is everything, but I will indicate what these autonomies meant and what was lost for Jammu and Kashmir, which comes back to Justice Kaul's question, are we flogging a dead horse? The answer is no, my lord. समात से कबल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लो ने गुलिस्तान में उस नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालती उज़्मा से उन्हें इंसाफ फराम होगा। 370 और 35A को लेकर के लगातार समाज जारी है और ऐसे जम्मू कश्मीर के जो तमाम लीडरान हैं उनका दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का रुख जारी है। इससे पहले हमने आपको बताया कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे और सज्जाद गनी लोन साहब भी पहले पहुंचे थे, लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से राजीव धवन साहब आर्गूमेंट कर रहे हैं। सज्जाद साहब, आप आज फिर आए हैं, आपकी ही पिटिशन पर समाज जारी है। उस दिन आप यहाँ मौजूद थे, मेरी आपसे बातचीत भी हो रही थी। अब बताइए कि जिस तरह से आर्गूमेंट रखे जा रहे हैं, क्या सेटिस्फाई हैं आप लोग? नहीं, सेटिस्फेक्शन तो है। अभी तो वी आर हैप्पी, सब वकील जितने भी हैं दे पुट अप, उन्हें जो आर्गूमेंट्स रखे हुए हैं, या हमारे वकील साहब ने तो अभी राजीव धवन साहब ने शुरुआत ही की थी, तो इंशाल्लाह दलाइल तो बहुत स्ट्रांग है, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, बस अल्लाह करे न्याय मिल जाए। न्याय की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपस में पॉलिटिकल पार्टीज में बंटवारा दिखाई दे रहा है, 370 35 है तो सबका आपका मूवमेंट था एक कि ये वापस आना चाहिए, बहाल होना चाहिए। मैंने देखा कि आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी कसते हुए सब लोग नजर आ रहे हैं। क्या इससे आप लोगों की लड़ाई में इख्तलाफ नहीं पड़ेगा? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर पट्टी होती है, न वो पार्टी जानती है, न वो मजहब जानती है, न कास्ट जानती है, वो दलाइल जानती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दलाइल सब वकीलों ने रखे हैं उसमें इंशाल्लाह न्याय मिलेगा। इसका और उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पहले दिन जो एफिडेविट दिया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम जो भी मसला करेंगे वो आईनी तौर पर देखेंगे, इसका हम कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें देखेंगे। और किस तरह से सरकार ने तो कहा था कि वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं है, वहाँ पर मिलिटेंसी कम हुई है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। उस सब को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, छोटी मुँह बड़ी बात ना हो, लेकिन मुझ जैसा नॉन लॉयर भी ये समझ सकता है कि जब उन्होंने एफिडेविट दायर किया जिसमें उन्होंने बोला कि पत्थरबाजी बंद हो गई, लॉ एंड ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन
रिप्लाई आया जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक टिप्पणी की, उसे एक दिन पहले आप मेरा ट्वीट चेक किया, हमने भी वही बोला, नॉन लॉयर, मेरे को लॉ का कुछ नहीं पता कि यार क्या बात कर रहे हो आप, इसका और उसका क्या हाल, हाउ कैन यू जस्टिफाई कि साहब वहाँ हमने ये कर दिया क्योंकि इससे 370, यू कांट जस्टिफाई, यू हैव टू गो इन अ लीगल मैनर, यू हैव टू गो इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। सो वो इवन अ नॉन लॉयर लाइक मी कुड हैव सीन दैट। जिस तरह के हालात अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में हैं, उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल, देयर इज़ नो पॉपुलिज्म, मतलब जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो तो है नहीं कहीं, लोगों के मुश्किल मसाइल होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। ये आप लिपस्टिक पाउडर जो ये मेकअप करके आते हैं आप टीवी पर देखिए, वो छोड़ दीजिए, असल खूबसूरती तो मेकअप उतारने के बाद होता है। वो कितना भयानक है वो हम जानते हैं क्योंकि हम वहाँ रहते हैं। और अगर आपको आप इतना समझते हैं कि जो ये मेकअप आपका इतना खूबसूरत है तो इलेक्शन कराइए, आप क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे हैं? हाउ इज़ इट पॉसिबल? और जो हमारी भारत की जनता है वो क्यों चुप करके है? चले मैं उनकी जो मर्जी वो करे, कितना भी मेजॉरिटेरियन हो, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 5 साल एक इतनी बड़ी जो कि एक स्टेट थी, जो सबसे पावरफुल स्टेट थी, उसको आप रेलीगेट करके यूटी बनाते हो और बोलते हो हमने इलेक्शन नहीं कराना। हमारी तरफ से कोई और ही बोल रहा है, हम जानते ही नहीं उनको। मतलब आप चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, सरकार कह रही है सब कुछ नॉर्मल है और इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। बिल्कुल होना चाहिए इलेक्शन, सरकार तो कह रही है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन को देन शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दीज। देखिए मैं आपको बताऊं, कश्मीर को लेकर अब सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की, कि एक तरफ से सरकार बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है लेकिन इलेक्शन कमीशन बोल रहा है नहीं, कहाँ अच्छे, हम तो इलेक्शन ही नहीं करा सकते। मतलब आपको लगता है कि जो इलेक्शन बीजेपी नहीं करा रही है उसकी क्या वजह है, क्या मानते हैं आप? वो जानते होंगे, उनका अपना प्रॉब्लम है, मेरा उससे लेना देना नहीं। बट कोई किसी की भी सरकार आए, काले कुत्ते की आए, लेकिन आए उसकी जो लोगों ने वहाँ चुना होगा। क्या आपको लगता है बीजेपी मजबूत हो गई है? बहुत सारे इश्यूज बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के रेस करने की कोशिश की है, उन सब इश्यूज पर अगर इलेक्शन होता है तो क्या बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि सरकार कह रही है हम गुज्जर बकरवाल के लिए काम कर रहे हैं, पहाड़ी के लिए काम कर रहे हैं। वो पहाड़ी का बिल भी करें, उसमें तो हम भी हक में, हम कहाँ खिलाफ हैं? तो हमने ही तो, मैं तो एज सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, मैंने पहले स्टेट असेंबली में जो लोकल बिल थी रिजर्वेशन की हमने पास की थी, हम तो हक में, हम कहाँ खिलाफ हैं? वो करें, सबको साथ मिलाएं। G20 हुआ है, 35 साल के बाद मुहर्रम का ताजिया निकला है, सरकार ये सब चीजें कह रही है कि हमने किया है ये सब। नहीं, मेरी बात सुनिए, G20 क्या 20 है? वैसे 20 तो बहुत सारे 20 हुए हैं वहाँ, ऐसा नहीं है, वो नहीं, डोंट गेट मिजल्ड बाय दैट। एंड एज आई एम टेलिंग यू कि ऐसे मौके पहले भी आए हैं। और जहाँ तक मुहर्रम का जुलूस ना अलाउ करने की, वो तो जो पुरानी गवर्नमेंट्स हैं उनको दे शुड आंसर फॉर इट। इवन आई बिलीव ये तो पहले भी हो सकता था, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई बेहतर काम आपको एक लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये कुछ बेहतर किया है जिसके हम फेवर में थे कि हाँ ये होना चाहिए था? आप मेरी बात सुनिए, जब कोई चीज़ हमें एक्सेप्ट ही नहीं है, उसमें अच्छे या बुरे की कोई भी सरकार जब बैठेगी तो कोई काम तो अच्छा होगा ही। कोई फुटपाथ अच्छा बनेगा तो हम क्यों बोले नहीं अच्छा नहीं बना? बट ओवरऑल व्हेन यू लुक एट इट, व्हाट यू गिव टू द पीपल ऑफ J&K इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू गिव इट टू देम इज इम्पॉर्टेंट। क्या आप इसको इज्जत से देते हैं? क्या ये वहाँ के नुमाइंदे करते हैं? या आप बाहर से कोई आदमी, मैंने पहले भी बोला कि ये टूरिस्ट का ज़माना है, ये बोल रहे हैं टूरिस्ट बहुत आए, टूरिस्ट ही रूल भी कर रहे हैं, टूरिस्ट ही आके एंजॉय भी कर रहे हैं, हम तो बाई स्टैंडर्ड्स हैं। सो इट्स अबाउट डिग्निटी। खुले शब्दों में LG को टूरिस्ट कह रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा उनको टूरिस्ट, मैंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है ना, सीधी सी बात है। मैं भी यहाँ टूरिस्ट ही हूँ, कल वापस जा रहा हूँ, दिल्ली आया हूँ 3 दिन के लिए। तो मकसद ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अबाउट डिग्निटी, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट, राइट? आप खीर ना खिलाइए, चावल दे दीजिए, लेकिन प्यार से दें। ऐसे आप फेंकेंगे। 370 और 35A के लिए तो आप भी डिटेन किए गए थे, कुछ दिन आप भी बंद रहे थे। कुछ दिन ही, 1 साल बंद था, 1 साल बंद रहे। उस 1 साल बंदी के दौरान आपको सोचना लगा कि 370 और 35A की लड़ाई हम इतनी मजबूती से बंद होकर के लड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, आई ऑलवेज न्यू दैट देयर आर ओनली 2 हाउसेस, वन इज सुप्रीम कोर्ट, द अदर इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आई गेव अप बिकॉज यहाँ तो माहौल ही अलग है, यहाँ का सेंटिमेंट ही अलग है। सो पार्लियामेंट आई गेव अप, बट सुप्रीम कोर्ट आई ऑलवेज थॉट दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट जस्टिस। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। चलिए, 370 35A को लेकर के पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सज्जाद गनी लोन साहब, और जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि 370 और 35A पर तमाम जो एडवोकेट्स हैं पूरी तरीके से आर्गुमेंट कर रहे हैं और उससे वो लोग खुश और संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। मैं ताबिश कमाल और मेरे सहयोगी साजिद लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, और बहुत अहम है
ये 370 और 35A की सुनवाई, इसलिए पल पल हमारे साथ बने। तो ये थी सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। और समाज से पहले उन्होंने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल से बात की है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली पहुंचे हैं, वो भी कोर्ट रूम पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में इस वक्त महबूबा मुफ्ती, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली से बराह रास्त, जहां पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी कोर्ट रूम के अंदर इस वक्त मौजूद है। 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सदारत में 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत कर रहा है। और आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की जानिब से जो सीनियर वकील राजीव धवन, उन्होंने अपने दलाइल पेश किए हैं। इस वक्त समाअत चल रही अदालत उस्मा के अंदर। उसके साथ साथ ही पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली के अंदर इस वक्त मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप बराह रास्त देख सकते हैं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी वहां पर मौजूद है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। Join Graphic Era deemed to be University Dehradun, ranked 55th university in India by NIRF 2023 and placed in rank band of 300 to 400 engineering institutions in the world by Times Higher Education, Washington DC. Except